child policy, whether it is constitutional or unconstitutional in nature. जब से ये पॉलिसी आया तब से ये डिस्कशन चलता रहता है. Recently also this issue has been raised in the Supreme Court. तो क्या इशू था? What Supreme Court has said regarding this? What has been the earlier judgment of the Supreme Court regarding this? How this two-child policy is being implemented in the various states? What are the consequences? What are the arguments in favor? And what are the arguments in against of the two-child policy? And what should be the way forward? Each and everything we will be discussing in this lecture. So please stay tuned. So recently this was in news, and in the news it was that the Supreme Court has upheld the Rajasthan rule bearing those with more than 2 children from the police forces. India Supreme Court holds state public employment policy bearing candidates with 2+ child. तो सबसे पहले तो इसमें जान लेते हैं कि what has been the issue, right? So actually the Rajasthan government has brought a rules and regulation. So that what does this says? The Rajasthan Various Services Amendment Rule 2001. According to this rule, under the Rule 24(4), it is provided that no candidate shall be eligible for appointments to the job who has more than 2 children or after 1st June 2002. Means 1 जून 2002 के बाद किसी को भी अलाउड नहीं होगा गवर्नमेंट सर्विस में जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, इन दोनों को भी अलाउड नहीं होगा. So there was an ex-serviceman who has been in the defense forces. So डिफेंस फोर्सेस आपको पता है कि शॉर्ट सर्विसेज होते हैं, उसमें जो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी होता है टू फाइल इन गो इनटू डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, राइट. इसके लिए इन्होंने कोशिश की कि कांस्टेबल के पोस्ट पे राजस्थान पुलिस में इनकी भर्ती हो जाए, बट दिस एक्स सर्विसमैन कैंडिडेचर हैज बीन कैंसिल्ड बाय द दिस गवर्नमेंट, राइट, because of this rule 24 का 4. So first this person he went into the high court. When the high court gave the judgment in favor of the government, then this person went to the Supreme Court. और Supreme Court में अभी वो decision आया है, लेकिन किसके basis पे decision आया है, that we have to understand. So what has been the earlier Supreme Court judgments? Because you know that Supreme Court is a court of record under Article 129 of the Constitution of India and Article 142 of the Constitution of India. इसीलिए सिमिलर तरह के केसेस अगर पहले भी आया हुआ है तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखती है, and according to that Supreme Court gives its judgment. So in similar nature, in the Javed versus the state of Haryana case 2003, the Supreme Court had said that एक जो लॉ बनाया गया था by the Haryana government, means the Haryana Municipal Second Amendment Act 1994, and through this it was introduced an eligibility condition to contest the panchayat election. So the Supreme Court has upheld this act, and Supreme Court in that case had said that the 2-child policy for the office of Sarpanch and the Up Sarpanch जो बने गए हरियाणा के अंदर, उनको 2-child पॉलिसी फॉलो करना चाहिए. जिनके पास भी 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहिए एज ए कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच और द उप सरपंच, राइट. सो दैट इज देयर. सो यूजिंग दिस जजमेंट ओनली द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए जजमेंट. द जजमेंट में एग्जैक्टली सेम ही चीज है, मीन्स जो अर्लियर जजमेंट था उसके करस्पॉन्डिंग ही जजमेंट आया, और जो कैंडिडेचर था जो कैंसिल कर दिया गया था एक्स सर्विसमैन का, डिफेंस सर्विस वाले का, फॉर द कांस्टेबल पोस्ट इन द राजस्थान पुलिस, तो इन्होंने बोला कि वो बिल्कुल सही है, एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड द प्ली ऑफ एक्स सर्विसमैन, राइट. एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड दैट व्हाटएवर द प्रोविजंस आर देयर इन द राजस्थान पब्लिक सर्विस के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर, सो दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर एंड इट इज कंप्लीटली
कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, राइट। सो ये टू चाइल्ड पॉलिसी कोई भी स्टेट्स अप्लाई कर सकता है, कोई इवन जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। नाउ whether it is only Rajasthan or whether there are other states also which has been implementing this two child policy, so let's understand this। और ये एक्चुअली हो क्यों रहा है? टू चाइल्ड पॉलिसी के लिए आप देखोगे तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आया था, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए बना के लाई थी पॉलिसी, एंड ऑल्सो सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो ब्रिंगिंग सच काइंड्स ऑफ लॉज फॉर द टू चाइल्ड पॉलिसी। तो ये फैमिली प्लानिंग पॉलिसी, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी जो है वो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी आ रहा है। व्हाई? बिकॉज एक्चुअली द पॉपुलेशन कंट्रोल एंड द फैमिली प्लानिंग इज देयर इन द 7th शेड्यूल of the Constitution of India under the concurrent list. So therefore both state legislature as well as the parliament can make laws regarding this. So in regarding this, several states has brought the two child policies, right, और उसको implement करने के लिए बहुत सारे rules, regulations and acts लेके आए। For example, राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994, so it has disqualified those with over two child from the contesting election as a पंच, as a or a member। तो राजस्थान के अंदर भी पंच या मेंबर बनने के लिए जो पंचायती राज का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इलेक्शन होता है उसमें those person who has having more than two child, they cannot contest the election। Similar thing has been there in the Odisha Jilla Parishad Act 1991 also। So it has also said that those person having more than two child will not be able to contest in the Jilla Parishad election, right? So it is going on in the Odisha also। Several other states has also brought this policy। For example, Gujarat Local Authorities Law Amendment Act 1964, इस एक्ट को अमेंड करके it disqualified for the bodies of the local self government like the पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सब में जहां भी जिस भी कैंडिडेट के पास टू चाइल्ड से ज्यादा होंगे उनको अलाउ ही नहीं किया जाएगा एज ए कैंडिडेट फॉर दिस काइंड्स ऑफ इलेक्शंस। लेकिन आपको ध्यान रहे कि अभी तक ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में ये सब चीजें नहीं लागू हो रही है, राइट। ये हो रहा है लोकल लेवल, पंचायत के लेवल पे ही, म्युनिसिपल लेवल पे ही हो रहा है। Similarly, several states are there, Maharashtra हो, असम हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो। So these states have also brought such kinds of two child policy, और इन्होंने ऐसे कैंडिडेट को कैंडिडेचर खत्म कर दिया जिनके पास दो चाइल्ड से ज्यादा कैंडिडेट हैं। Even in case of government job also, several states have brought the law that those candidates या those aspirants जिनका शादी हो गया है और उनका दो से ज्यादा बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल्स 2005, इट मैंडेटेड द फिलिंग ऑफ ए स्मॉल फैमिली डिक्लेरेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए गवर्नमेंट जॉब्स। स्मॉल फैमिली का मतलब है हस्बैंड वाइफ प्लस 2 चिल्ड्रन, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सिमिलरली, यूपी स्टेट लॉ कमीशन in 2021 it has recommended to bring a bill for the implementing this two child policy, और इसके लिए बिल आया भी, that is the उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल। in this bill it was said that those persons will be disqualified जिसके पास दो से ज्यादा चिल्ड्रन है for government employment, for the municipal और the पंचायत इलेक्शन, and even for the housing tax rebate जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, उसमें भी दो चाइल्ड पॉलिसी को देखा जाएगा कि किसी भी आदमी के पास अगर दो चाइल्ड से ज्यादा है तो उनको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा, राइट। तो अभी तक ये बिल ही है। तो इस तरह के सारे प्रोविजंस जो हमने देखा कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने लेके आई है टू चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस whether this bringing this two child policy is good or bad. What are the arguments in favor of this? What are arguments in against of this? Right. So argument in favor will say that according to the United Nations population reports, already India has 1.42 billion population and we are having the largest population in the world.
अगर अभी भी टू चाइल्ड पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, देन फॉर हाउ लॉन्ग, कहां तक हम लोग का रखेंगे? 200 बिलियन, 250 बिलियन, कब तक जाएगा? राइट? तो सच काइंड्स ऑफ लॉजिक कम्स अप. देन वी आर ऑलरेडी हैविंग ए डेमोग्राफिक डिविडेंड. किसी भी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए वी शुड हैव ए डेमोग्राफिक डिविडेंड. If we see India's scenario, then from the 2005-6 only we are enjoying this demographic dividend. The median age of Indians is around 28 years or 29 years, and we will be enjoying this demographic dividend till 2055, 2056. तो अभी के टाइम पे तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस किया जा सकता है. Then, if the population will be less, then there can be better focus on the socio-economic development. Health aspect better हो सकते हैं, education aspect better हो सकते हैं, other social aspect जो हैं वो better हो सकते हैं, उन पे better focus किया जा सकता है. Right? Plus environmental sustainability will be there. अगर population will be less, so there will be less requirement of the resources. Already we are having the 17% of the world population, but we are having 2.4% of the world's land and the 4% of the world's water reserves. And उसमें भी land degradation बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, climate change बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, and several kinds of environmental problems are increasing every day because of the large population which we are having. तो ये भी एक problem है. Plus women empowerment. अभी भी अगर आप देखोगे तो sex ratio it is not equal. The males का और female का जो ratio है in our country, so that is not equal. Gender disparity is there. So what we have to do, we have to focus on increasing the female population rather than just haphazardly increasing the population, right? But what are the argument in against? क्योंकि जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो you will have to give both kinds of arguments if it is a critically analyzed question. So what are the argument in against? We are having a society where there is patriarchal mindset is prevailing, right? And two child policy होगा तो लोग चाहेंगे या तो 2 बेटा हो जाए या कम से कम 1 बेटा तो हो ही. अगर सब कोई चाहेगा कि 2 बेटा हो जाए या कम से कम 1 बेटा 1 बेटी हो, तो सोचो कि ऐसे में तो 1 बेटा का कभी शादी ही नहीं होगा, राइट? तो सेक्स रेशियो में गेट डिस्टॉर्टेड hugely. दूसरा है कि as we have already reached till total fertility rate से below, the total fertility rate को कहा जाता है 2.1, means this is the replacement level. कि अगर 2.1 है तो population will be constant, लेकिन already we have achieved 2.0. इसका मतलब है in coming decades the population of India will be decreasing. So why there is need to have the 2-child policy? Plus it may increase the abortion and the infanticides, because जो फीमेल इन्फेंटिसाइड बढ़ सकता है, एबॉर्शन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ये सेक्स रिलेटेड जो है वो ट्रैकिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, राइट? तो ये सब चीजें जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी होता है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर 2-child पॉलिसी को बहुत एग्रेसिवली अप्लाई किया गया तो. प्लस इट इज अगेंस्ट द राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव फ्रीडम एंड प्राइवेसी. एक वुमेन का ये हक है कि वो डिसाइड करे कि उनका वो कितने बार रिप्रोडक्शन साइकिल में जाना चाहती हैं, राइट? एंड व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड दिस, द सुप्रीम कोर्ट इन द सुचित्रा श्रीवास्तव केस इन 2009, द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड दैट द राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम एंड द प्राइवेसी कम्स अंडर द आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो अगर 2-child पॉलिसी बहुत एग्रेसिवली फॉलो करने की कोशिश की जाएगी, देन इट मे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ, राइट? सो दिस इज ऑल द डिस्कशन, है ना? बट द थिंग इज, इश्यू वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है. एंड द मल्टीपल टाइम्स सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द लॉ which is implementing this 2-child policy, whether it is a state law, whether it is a central law, whatever wherever it is, so it is very constitutional in nature, it is not discriminatory in nature. Therefore we can say that जो लॉ है उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, एज इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको
अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देती, राइट? तो ये चीज हो नहीं रहा। इससे भी नहीं माना जा सकता कि इंडिया नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन और नॉट। इंडिया विल हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, है ना, क्योंकि जितना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जितना लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जितना ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, जितने सारे फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, है ना, जितने सारे लैंडस्लाइड्स आते जा रहे हैं, तो इन्वायरमेंटली जो है वी आर नॉट सस्टेनेबल इन नेचर। देयर हैज बीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अर्थक्वेक्स कमिंग, राइट? सो इंडिया नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन, और थोड़ा सा पॉपुलेशन को डिक्रीज करने की भी जरूरत है। एंड इन दैट इफ टू चाइल्ड पॉलिसी इज लाइक हेल्पफुल, दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड। प्लस द फोकस शुड बी ऑन द जेंडर पैरिटी। अगर टू चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट भी हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि लाइक पेट्रियार्कल माइंडसेट से बाहर निकलो एंड जेंडर पैरिटी की तरफ जाओ। 1000 मेन पे 1000 वुमेन, दिस इज आइडियल सिचुएशन विच वी शुड हैविंग, वी शुड बी अचीविंग। तो जहां जहां पे जेंडर डिस्पैरिटी है जिस जिस स्टेट में, तो वहां पे और भी ज्यादा फीमेल पॉपुलेशन को लाने की जरूरत है, वहां पे इस चीज को जेंडर पैरिटी को प्रमोट करने की जरूरत है, राइट? सो इन जनरल टू चाइल्ड पॉलिसी इज नॉट बैड फॉर सिचुएशंस लाइक इंडिया। एंड अगर ये इंसेंटिवाइज किया जाएगा लोगों को, या डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा लोगों को कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, या आपको गवर्नमेंट जॉब्स आप नहीं फिल कर सकते, तो ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. This is all from my side from this topic. Thank you very much.